যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রেডি প্রভুজি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 114 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 13.114 অনওয়ার্ডস, 114 নম্বর শ্লোক। পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে, পুনরপি একবার আসিয়া নীলাচলে। উনি একবার আসিহি নীলাচলে। বলছেন না কেন? बोल रहा है। तो बोल नहीं रहा है, जिनका टर्न प्रभु हम बोले ना पुनरपि एक। ना शिवाश प्रभु का टर्न है, देखिए सीक्वेंस में। हाँ बोलो शिवाश प्रभु का टर्न है। পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে, এত বলি কণ্ঠমালা দিলা তার গলে, এত বলি কণ্ঠমালা দিলা তার গলে। আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায়, আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তার, আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় দিয়ে তারে দিলা, আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিলা। প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা, প্রেমে গড় গড় ভট্ট কান্দিতে লাগিলা। স্বরূপাদি ভক্ত ঠাই আজ্ঞা মাগিয়া, স্বরূপ আদি ভক্ত ঠাই আজ্ঞা মাগিয়া। বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া। 4 বৎসর ঘরে পিতা মাতার সেবা কইলা, 4 বৎসর ঘরে পিতা মাতার সেবা কইলা। বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাই ভাগবত পড়িলা, বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাই ভাগবত পড়িলা। মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হইয়া, পিতামাতা কাশী পাইলে উদাসীন হইয়া। প্রভুর ঠাই আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া। পুনঃ প্রভু ঠাই আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া। Yes, অনুবাদ। চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন, আবার তুমি নীলাচলে এসো। এই বলে তিনি তার কণ্ঠের মালা রঘুনাথ ভট্টের গলায় দিলেন। ओके, सो रघुनाथ भट्ट को महाप्रभु, जब रघुनाथ भट्ट जा रहा है पुरी छोड़ के बनारस वापस, 8 महीना रहकर उस समय उपदेश दे रहा है। ये क्या कोई टीम का नया स्ट्रेटेजी है? हम लोग सब मेंबर्स येलो बैकग्राउंड, हरी बोल। यस गोविंदा येलो। ओके, और स्काई ब्लू वाला किनका है? माधव। हरी हरी बोल, वाह बहुत अच्छा। बाकी ने सोचा नहीं, अभी कॉपी करेगा शायद आइडिया। प्रभुजी, किनका आइडिया था? बहुत अच्छा आइडिया है। किनका आइडिया था? मेरा ही आइडिया था। एक्सीलेंट भारती जी, वेल डन। नहीं प्रभु जी, केशव ने भी सोच लिया, केशव का क्या? अच्छा, आप लोग भी सोचा? कौन सा कलर सोचा आप लोग ने? नहीं, माता जी ने सजेस्ट किया है, भारती माता जी ने सबके लिए सजेस्ट किए प्रभु जी। ब्लू हो गया माधव का, येलो गोविंदा, केशव के लिए पर्पल, और राघव टीम के लिए पिंक है। पिंक, अच्छा रामचंद्र जी पिंक, ओके, वाह बहुत अच्छा। स्टार्टिंग हुआ था प्रभु राजीव प्रभु बैकग्राउंड को ध्यान दिए, तो उसके बाद फिर इधर में भारती माता जी का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ओके। তারপর তাকে আলিঙ্গন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বিদায় দিলেন। প্রেমে বিহ্বল হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আসন্ন বিরহে রঘুনাথ ভট্ট কাঁদতে লাগলেন। ऑब्वियसली 8 महीना भगवान के साथ रहने के बाद किसको लगेगा मन करेगा वापस जाने के लिए, लेकिन भगवान ने आदेश दिया है माता पिता का सेवा करने का, क्योंकि वो वैष्णव है तो जाना पड़ेगा। फिर শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে স্বরূপ দামোদর প্রভু প্রমুখ ভক্তদের কাছে বিদায় নিয়ে রঘুনাথ ভট্ট বারাণসীতে ফিরে গেলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে রঘুনাথ ভট্ট 4 বছর তার গৃহে থেকে পিতামাতার সেবা করলেন এবং বৈষ্ণব পণ্ডিতের কাছে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করলেন। देखिए एग्जैक्ट जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था वैसे ही उन्होंने किया। आगे, पूर्ववत अष्टमास प्रभु पाशो छिला। नेक्स्ट, ओ महामंजरी माता जी साउंड ठीक करिए, फैन वैन ऑफ कीजिए, एग्जॉस्ट फैन सब कुछ ऑफ कीजिए।
ও 118 নম্বরটা বাকি রয়ে গেছে শ্লোক হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন সুভাষ প্রভু তারপর তারপর তার পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি গৃহত্যাগ করে উদাসীন হয়ে পুনরায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ফিরে গেলেন। পিতামাতার काशी पाइला माने माने स्वर्गवास ऐसे कुछ नो काशी पाइला हिंदी में क्या लिखा है शशि माता जी? प्रभु जी काशी में देहांत हो गया लिखा है। अच्छा तो ये दिस इज अ वे ऑफ सेइंग काशी पाइला ऐसे नहीं আমার মনে হয় মানে কাশি में अगर कोई नहीं भी रहेगा फिर भी काशी पाइला মানে माता पिता काशी गमन হয়ে গেছে মানে हरे कृष्ण হয়ে গেছে কিনা ওকে কাশি মানে মত সোচিएगा आपका क्या কাশি হয়ে গেছে নাকি এরকম না কাশি মানে হরে কৃষ্ণ হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন তো তারপর তার পিতামাতার प्रभु लेकिन ये तो गए थे ना वाराणसी, वाराणसी में ही हुआ उनके माता पिता का, काशी में ही हुआ। वो तो ठीक है बट इट इज आई थिंक इट्स अ जनरल टर्म माता पिता काशी गमन হয়েছে কিনা काशी पाइला माने ये नहीं कि काशी में गमन किसी का अगर होगा तो फिर बोला जाएगा आई डोंट थिंक सो एनीवेज यस कहना मतलब प्रभु स्वर्ग लोक जाना। हाँ इट्स ए कॉमन टर्म इट्स नहीं कि काशी में जो व्यक्ति प्राण त्याग करेगा उसी को बोलेंगे काशी बहुत पहले प्रभु काशी करवट लेने लोग जाते थे, काशी करवट। तो काशी में मृत्यु होने को ही स्वर्ग होना मान लिया जाता था कि जिसकी मृत्यु काशी नगरी में हुई अर्थात उसका स्वर्ग लोक हो गया। तो अगर कोई बाहर मृत्यु हुआ ये बंगाल में ये प्रचलित है ना कि काशी गमन हुई कि ना माता पिता माने इट्स नॉट नेसेसरी दैट काशी में ही मृत्यु होना पड़ेगा क्या ये सही है? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ बिकॉज आई हर्ड दिस बंगाल में ये टर्म बहुत कॉमन यूज्ड होता है यस पंकज ने पास सुने ये वाला। हरे कृष्णा प्रभु जी अभी भी बोलते हैं काशी में ऐसा कुछ एक मतलब लॉजेज और इंस्टीट्यूशन बना हुआ जहाँ पे लोग जाके रहता है कि टिल डेथ वहीं पे रहेगा ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु जी काशी में एक तो मुक्ति धाम है, वहाँ पे जिसको अंतिम समय आता है ना तो आता है 15 दिन के लिए उसको कमरा दिया जाता है। अगर उस बीच प्राण निकल गया तो उनका मुक्ति हो गया, अगर नहीं निकला तो फिर उन लोग को खाली करा दिया जाता है। मुक्ति धाम एक है स्थान। ओके अब 15 दिन में तो प्रभु टाइम तो फिक्स नहीं है ना हम लोग का, तो कोई मृत्यु वो सैया पे भी पड़ा रहेगा तो भी नहीं माता जी, जो एकदम मरने हुआ रहता है उसको दिया जाता है। तो इस्कॉन में भी ऐसा है जिसका अब तब लगा है। ये इस्कॉन में जो वृंदावन में हॉस्पाइस है हॉस्पाइस इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्पाइस HOSPIC ऐसे कुछ होगा हॉस्पाइस ये आप लोग को मालूम है वृंदावन में इस्कॉन वृंदावन में जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल है उसके पास में हॉस्पाइस है सो जो सब वैष्णव लोग ऑफ कोर्स वो उधर बहुत लंबा बुकिंग चलता है लेकिन जो जो सीनियर डिवोटीज माता पिता या सीनियर वैष्णव लोग जो देह रखेगा उन लोग को वहाँ लिया जाता है ओके और बहुत हरिनाम कीर्तन होता है बहुत होता है जस्ट अबाउट टू लीव देयर बॉडी जैसे चंदा माता जी ने बताया वैसे कंडीशन में भक्त लोग को वहाँ लिया जाता है प्रभु। लेकिन यहाँ तो माता जी बोली 15 दिन का टाइम फिक्स है उनका। हर एक प्रश्न में लेकिन क्यों रहता है? हाँ बोलिए। तो माता जी जिसका एकदम अब तब लगा रहता है ना एकदम प्राण निकलने वही लोग आते हैं। तो ऐसे अंडरस्टूड है अभी 16 दिन होगा ऐसा नहीं कि 16 दिन होगा उसीलिए एकदम रिजेक्ट हो जाएगा ऐसा नहीं चलता है यस सरोज कृष्ण माता जी माता जी साउंड আসছে না पंकज ने तो सब व्यवसायीकरण हो गया ना तो सब बिजनेस तौर पर चल रहा है। पंकज ने तो हाँ हरे कृष्ण ये वृंदावन का जो आप बताए वो मतलब बुकिंग करना है किसी को एडवांस आगे से प्रूफ कब आएगा ना मालूम नहीं आगे से बुकिंग करके रखे क्योंकि बुकिंग बहुत मुश्किल अभी से बुक कर लेते हमको मालूम है इनके बारे में आचार्य रत्न प्रभु का पिताजी का जब ऐसे हुआ था लास्ट स्टेज में प्रभु अपने फादर को लेकर चले गए थे उधर वृंदावन हॉस्पाइस ये जस्ट परिक्रमा मार्ग में है देखिएगा हॉस्पाइस है प्रभु बुकिंग करेंगे तो इस्कॉन के भक्तों का लाइन लग जाएगा होता है बुकिंग होता है उधर सब आगे से बहुत बता के रखना पड़ता है बहुत कुछ है आइडियल प्लेस लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या चाहते थे श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज भी यही बताते थे कि इट्स बेटर टू बी फाइटिंग इन द बैटलफील्ड डाई इन द बैटलफील्ड प्रचार करते करते मृत्यु जो भी लास्ट स्टेज हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद वृंदावन में
लेटे हुए हैं और डिक्टाफोन सामने भक्त लोग लेकर पकड़ा हुआ है और श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम पाठ कर रहे हैं और फिर आस्ते करके आग बंद हो गया। that is the way Srila Prabhupada wants his members to leave their body in the battlefield. तो प्रभुपाद लीला अमृत में बहुत सुंदर प्रभुपाद ने बताया ये किस तरह से मरना है। ये प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ के समझ सकते हैं भक्त लोग। Okay. आर्ट ऑफ डाइंग एक बहुत फेमस बुक भी है, आर्ट ऑफ डाइंग। किनका लिखा हुआ? आर्ट ऑफ डाइंग शायद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का आर्ट ऑफ डाइंग। তারপর তার পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি গৃহত্যাগ করে উদাসীন হয়ে পুনরায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ফিরে গেলেন। দেখেন दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ प्योरिटी। अभी माता पिता नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अभी तो ऐसे कुछ नहीं, तुरंत माता पिता नहीं, तुरंत चला गया महाप्रभु के पास। वैसे नारद मुनि, उनका जब माता का मृत्यु हुआ था सर्प दंशन से, वो चाहते थे तो भक्ति वेदांत के साथ चला जाता। जो भक्ति वेदांत लोग जंगल में उनको शिक्षा दिया था नारद मुनि को, लेकिन जब चातुर्मास के बाद भक्ति वेदांत लोग चले गए, उनको दीक्षा देकर शिक्षा देकर, नारद मुनि डिड नॉट लीव मदर एंड वेंट। ऐसा नहीं किया उन्होंने माता का सेवा किया, माता के पास रहा, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि विल ऑफ प्रोविडेंस, सर्पदंशन हुआ उनका, माता का मृत्यु हो गया। तो अभी क्या किया? तुरंत उन्होंने उस स्थान को छोड़कर भक्ति वेदांत ढूंढने चला गया। वो साधु लोग का संगत में ढूंढे, उसीलिए नारद मुनि हुआ, दासी पुत्र से नारद मुनि। ओके, सो टिल द टाइम वी हैव टू डू आवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो है वो ठीक है, बट द मोमेंट ऑक्यूपेशनल ड्यूटी खत्म, व्यक्ति को, भक्त को एक सेकंड सोचना चाहिए, तुरंत बोली बिस्तर उठाकर भक्तों के संगत में जाना चाहिए, तुरंत। तो प्रभु जी दाह संस्कार कौन करेगा? नारद भगवान चलेंगे तो दाह संस्कार कौन किया? ये तो अंडरस्टूड है, दाह संस्कार करके गया था। ये तो एवरीथिंग इज नॉट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई मीन इट गोज विदाउट सेइंग। उसीलिए उस दिन हम लोग क्लास नहीं रखे थे मॉर्निंग में, महालय के दिन। एक्चुअली आगे बोलना भूल गए, क्योंकि लेकिन पूर्वज को टू पे ऑब्लिगेशंस टू द फोर फादर्स, पितृ तर्पण करना या पूर्वजों का ऋण, ये सब करने के लिए, उसीलिए आई केप्ट इट फ्री सो दैट एवरीबडी, आई मीन जरूरी नहीं है कि माता पिता जीवित है तो क्या हुआ, पूर्वज तो हैं, उन लोग को विष्णु प्रसाद दे सकते हैं ना। सो आई थिंक 6:12 से तिथि था, 6:12 से, उसीलिए शुक्लमठ प्रभु बताया 6:12 को, तो उसीलिए आई केप्ट इट फ्री क्लास को, उसीलिए उस दिन नहीं रखा चैतन्य चरितामृत का। ये फिर तो लोग, चैतन्य चरितामृत एक नशा आदत जैसा हो गया, तो फिर उस समय जाएगा नहीं लोग ऐसा करने के लिए, पितृतर्पण या पूर्वजों का उस दिन विष्णु प्रसाद उन लोग को देने के लिए। बिकॉज गृहस्थों का 4 कार्य है, गृहस्थों का 4 कार्य क्या क्या है? विनीता माता जी है क्या? नहीं है। और एक है प्रचार कार्य में पैसा लगाना, जो गृहस्थ का इनकम 4 कार्य में यूज करना चाहिए, प्रचार कार्य में पैसा लगाना चाहिए। फिर 2 नंबर था पितरों का ये ऋण चुकाने के लिए। तीसरा था शायद डीटी वर्शिप था शायद तीसरा, और चौथा था दैनंदिन जीवन में जो डे टू डे जो खर्चा होता है। ये 4 प्रकार का खर्चा होना चाहिए गृहस्थ। प्रभु चौथा क्या बोले? डे टू डे एक्टिविटीज, डेली जो खर्चा होता है। यस रेखा माता जी। तो उसीलिए वो पितृतर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, पितरों का तर्पण। या बोलिए माता जी, क्या हुआ माता जी? सोचे प्रभु जी ना कि भक्ति शास्त्री नहीं होगा, पर भक्ति नहीं होगा। बहुत लोग बोले थे, आले हैं प्रभु जी भक्ति शास्त्री मत करेगा, लेकिन प्रभु जी कुछ बोले नहीं, चला प्रभु प्रसाद में टाइम तर्पण भी करना करके साउंड आ रहा है। आप लोग सबका वैसे आ रहा है क्या? आधा आधा तो हाँ प्रभु जी आवाज नहीं फरिया रहा है। एनीवेज, तो भक्ति शास्त्री था ये समझ में आ रहा है बाद में। तो लेकिन उस बीच में तो पितरों का तर्पण करने कितना टाइम लगता है? मैं पानीहाटी घाट में बैठा, पितरों तर्पण करने 15-20 मिनट लगा। बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से शुक्ल
प्रभु बहुत अच्छा एक भक्त हैं, राधा मुरारी प्रभु, गोविंद मुरारी प्रभु, उनको पिछले बार भी उन्होंने किया था, इस बार भी उन्होंने किया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, मैंने संतुष्ट हुआ पितरों का तर्पण करके। तो वो क्या सबका एक साथ करवाते थे या? नहीं, एक तो भक्त है जो एक साथ करवाया नीचे घाट में, एकदम मस्त, सब वैष्णव भक्त लोग का एक साथ करवाया, और हम जो एक्सक्लूसिवली और चाहता है तो उनके लिए ये गोविंद मुर्ग, वो जो पर नया प्लेटफॉर्म बनाया है पानीहाटी घाट में, वो प्लेटफॉर्म में बैठाकर एक एक करके सबको करवाया, बहुत अच्छा से समझा कर करवाया। लेकिन प्रभु आप तो बोले टाइमिंग है ना उसका, तो आपका प्रश्न है लेकिन रहता है, बोलिए। प्रभु टाइमिंग है ना उसका तो। हाँ, 6-12 से ज्यादा का नहीं कराना है, मास कराने के लिए एक जन था, और एक एक करके पकड़ के कराने के लिए भी एक भक्त नियुक्त किया गया था। ओके, अगला श्लोक। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पितृतर्पण। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को शरीर नहीं मिला, कितना साल वेट कर रहा है कि कौन वैष्णव आएगा हमको विष्णु प्रसाद देगा, हाउ मेनी लॉन्ग इयर्स ऐसे भटक रहा है। सोचिए, मालूम भी तो नहीं है पूर्वज में किनको शरीर मिला नहीं मिला, मालूम है आप लोगों को, सबको, किसी को मालूम नहीं है क्या गति हुआ होगा किसका। पूर्ववत अष्टमास प्रभु पाशो छिला, पूर्ववत अष्टमास प्रभु पास छिला, अष्टमास रही पुनः प्रभु आज्ञा दिला, अष्टमास रही पुनः प्रभु आज्ञा दिला, हमारो आज्ञा रघुनाथ जाहो वृंदावने, आमार आज्ञा रघुनाथ राहे वृंदावने, ताहा जया रूप रहो रूप सनातन स्थाने, ताहा जया रह रूप सनातन स्थाने, भागवत परो सदा लहो कृष्ण नाम, भागवत पढ़ो सदा लहे कृष्ण नाम, करिबेन कृपा कृष्ण भगवान, तारीचे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। तो बोली प्रभु तारे आलिंगन कइला, एत बोले प्रभु तारे आलिंगन कैला, प्रभु कृपाते कृष्ण प्रेमे मत्त हइला, प्रभु कृपा से कृष्ण प्रेमे मत हइला, 14 हाथ जगन्नाथेर तुलसीर माला, चाहत हाथ जगन्नाथे तुलसी माला, 14 हाथ जगन्नाथेर तुलसीर माला, 14 हाथ जगन्नाथेर तुलसीर माला, छूटा पान बीड़ा महोत्सवे पाछाइला, छूटा पान बीड़ा महोत्सवे पाछाइला, সেই মালা ছুটা পান প্রভু তারে দিলা, সেই মালা ছুটা পান প্রভু তারে দিলা, ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা, इष्ट देव करी माला धारिया राखिला, প্রভু ঠাই আজ্ঞা লইয়া গেলা বৃন্দাবনে, प्रभु ठाइया आज्ञा लैया गेला वृंदावने, আশ্রয় করিলা আশি রূপ সনাতনে, आश्रय करिला आशी रूप सनातने। পূর্বের মতো রঘুনাথ 8 মাস 8 মাস শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ছিলেন। তারপর মহাপ্রভু তাকে আদেশ দিলেন, রঘুনাথ, আমার আদেশ অনুসারে তুমি বৃন্দাবনে যাও এবং সেখানে গিয়ে রূপ সনাতনের তত্ত্বাবধানে থাকো। বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীমদ ভাগবত পড়ো এবং সর্বক্ষণ কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করো। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই তোমায় কৃপা করবেন। এই বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তার কৃপায় রঘুনাথ ভট্ট কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হলেন। মহোৎসবের সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 14 হাত লম্বা জগন্নাথের তুলসীর মালা এবং মশলা ছাড়া পানের বিড়া পেয়েছিলেন। प्रभु, क्या हम लोग मसाला के बिना पान खा सकते हैं? हिंदी में क्या लिखा है? मसाला छड़ा पानेर बीरा, हिंदी में क्या लिखा है? सादा पान प्रभु। सादा पान। हाँ प्रभु, एक प्रश्न है Yes. कि ये रघुनाथ भट्ट को तो पहले उन्होंने कहा था कि माता पिता की सेवा करने और उनसे वैष्णव से भागवत पाठ कर सुनने,
अब ये दोबारा जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई तो फिर से ये आए महाप्रभु के पास, क्या उसके बाद उन्होंने ये आदेश दिया? हाँ, वापस फिर आया। लिखा है ना, वो तुरंत चला गया जब माता पिता माने उन्होंने जब काशी गमन किया माता पिता, तो तुरंत चला गया महाप्रभु के पास। लिखा है সেই মালা এবং পান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে দিয়েছিলেন এবং রঘুনাথ ভট্ট তার আরাধ্য বিগ্রহ রূপে সেগুলি তার কাছে রেখেছিলেন, খায়া নেই। হরে কৃষ্ণ। প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে রঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে গেলেন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আশ্রয়ে রইলেন। রূপ গোসাইয়ের সভায় করেন ভাগবত পঠন। রূপ গোসাইয়ের সভায় করেন ভাগবত পঠন। ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন। ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন। অশ্রুকম্প গদ গদ প্রভুর কৃপাতে। অশ্রুকম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে। মিত্রকণ্ঠ রোধে বাষ্প না পারে পড়িতে। নেত্রকণ্ঠ রোধে বাষ্প না পারে পড়িতে। পিকশ্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ। পিকশ্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ। এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ। এক চোখ পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ। কৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য যবে কৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য যবে পরে শুনে। কৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য যবে পড়ে শুনে। প্রেমেতে বিহল তবে কিছুই না জানে। প্রেমেতে বিহল তবে কিছুই না জানে। গোবিন্দ চরণে কইলা আত্মসমর্পণ। গোবিন্দ চরণে কইলা আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ। গোবিন্দ চরণে কইলা আত্মসমর্পণ। গোবিন্দ চরণার বিন্দ যার প্রাণ ধন। গোবিন্দ চরণার বিন্দ যার প্রাণ ধন। रूप गोस्वामी काছে। हरे कृष्णा प्रभु, एक तो प्रश्न है। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु यहाँ पे जो 124 नंबर श्लोक है, इसमें लिखा है कि जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने वह माला और पान रघुनाथ को दिए, जिन्होंने इसे आराध्य देव की तरह स्वीकार किया और सुरक्षित रख लिया। इसका मतलब क्या हुआ? वो उसको लिए नहीं, क्योंकि तुलसी महाप्रसाद है जगन्नाथ। तो उनको लिए नहीं, मतलब यूज नहीं किया, उसको पूजा करते थे उसको। सोचिए कभी आप लोग अगर श्रील प्रभुपाद का कुछ मिल जाए, श्रील प्रभुपाद का चश्मा मिल जाए, श्रील प्रभुपाद का कोई जपमाला बैग मिल जाए, तो क्या कीजिएगा? आप भी यूज कीजिएगा श्रील प्रभुपाद का जपमाला बैग? ये हम भी यूज करेंगे। अभी हमारा पास नहीं प्रभु जी, मंदिर में रख के पूजा करेंगे उसको। हाँ, यस, ओके, यस प्रभु जप माला तो अलग चीज हो गया है, तुलसी तो जैसे कैसे हो जाएगी ना, फिर वो गिरती रहेगी इधर उधर। तुलसी और पान। रूप गोस्वामी काছে তিনি ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন। जैसे कोई शोकेस में रख देंगे उसको, जगन्नाथ का तुलसी कर सकते हैं। कोई कितना भक्त है बुक में प्रसादी माला रख देता है, बुक के अंदर। देखा आप लोग ने? फूल दिया, तो जी कोई दुख का दिया हुआ फूल वो बुक के अंदर में रख देता है, वो सालों साल रहता है। मेरा कुछ तो बहुत साल से है। आपने दिखाया था गुरु महाराज का, हाँ, हमको याद है। तो ऐसे रखता है भक्त, कुछ नहीं होता है। ये सुचारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग को एक बार ये किचन में सेवा कर रहे थे तो राधा रानी का साल सबको दिया था, 4-5 माता। हाँ, राधा रानी जो साल ओढ़ती है ना, वो साल दिया था और एक साड़ी भी था, तो वो साड़ी मुझे दिया, तो अभी भी रखा हुआ। ये जो वो सब हाँ रख देने का है, वो पहनने का नहीं है, वो रख देने का ही चीज़ है। साड़ी और साल दिया था। हाँ, वो प्रसादी है, वो रख देने का, वो पहनने का नहीं है। सोचिए आपको प्रभुपाद का चश्मा मिला आपको, आप बोलेंगे नहीं मेरा थोड़ा चश्मा चाहिए था, ना मेरा चश्मा टूट गया, अभी देखते तो इसको लेकर बताइए नहीं, आप ट्राई करेंगे क्या? एकदम नहीं, वो प्रसादी है, मेमेंटो है। आप मैंने उसको शोकेस में
कांचेर बाक्से रेखे देवे ना, सबको प्रणाम कराइएगा ना। उसको प्रणाम करना प्रभुपाद को प्रणाम करने का बराबर है, इसमें कोई संदेह नहीं। एनीथिंग, कोई भी, जैसे लोहा भी चुंबक के स्पर्श में रहने से लोहा में भी चुंबक का गुण आ जाता है। वैसे ही वो हो सकता है एक चश्मा है, एक तो चश्मा ही है, क्या है, लेकिन प्रभुपाद ने पहना है। प्रभुपाद दिव्य है, प्रभुपाद दिव्य शरीर है, वो चश्मा भी दिव्य हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, नॉट मटेरियल पंचभूत वाला चश्मा नहीं रहा। यस पंकज प्रभु। तो बंगाली में तो लिखा हुआ है था आराध्य विग्रह रूपे सेगुली ताकाशे के छिले। तो जस्ट लाइक डीटी, यू नो, जैसे एकदम डीटी के जैसे हम लोग सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, आरती भी करते हैं, वैसे। या आगे। রূপ গোস্বামীর কাছে তিনি ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন এবং ভাগবত পাঠ করতে করতে তার মন কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হলো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় রঘুনাথ ভট্ট অশ্রু, কম্প, গদগদ বচন আদি ভগবত প্রেম জনিত বিকার অনুভব করলেন। তার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করতে পারলেন না। তার কণ্ঠ ছিল কোকিলের মতো মধুর এবং তিনি 3-4টি বিভিন্ন রাগে শ্রীমদ্ ভাগবতের এক একটি শ্লোক পাঠ করতেন। তাই তার ভাগবত प्रभु পাঠ जी ছিল रघुनाथ भट्ट की वाणी कोयल के समान थी। क्या रघुनाथ भट्ट की वाणी कोयल के समान थी। तुमको समझ नहीं आ रहा है? क्या है प्रश्न? लिखा है प्रभु जी उनकी वाणी कोयल की वाणी के समान थी, तो किनकी? रघुनाथ भट्ट की ना। कोयल के वाणी के समान थी माने बहुत मधुर थी, ठीक है। किनकी वाणी है? ये रघुनाथ भट्ट के बारे में बोला जा रहा है। हाँ वही पूछ रहे हैं प्रभु जी, ठीक है। कोयल के जैसा माने समझ रहे हैं ना आप लोग, मत बोलिए कू कू करता था क्या। तो लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है कि रूप स्वामी सनातन गोस्वामी का, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि इस कारण वे श्रीमद् भागवत नहीं सुना पाते थे इसके पहले श्लोक में। हाँ, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सुना रहे थे ना रघुनाथ भट्ट को। नहीं, उन्हीं के बारे में। आगे। তার কণ্ঠ ছিল কোকিলের মতো মধুর এবং তিনি 3-4টি বিভিন্ন রাগে শ্রীমদ্ ভাগবতের এক একটি শ্লোক পাঠ করতেন। তাই তার ভাগবত পাঠ ছিল অত্যন্ত। हरे कृष्ण, एक सेकंड, 126 में लिखा हुआ है रूप गोस्वामी काछे तिनी भागवत पाठ करते हैं। रूप गोस्वामी काछे तिनी भागवत पाठ करते हैं, 126 में लिखा हुआ है। यस प्रभु जी। नॉट वाइस वर्सा। यस পড়ুন অশোক মিশ্র প্রভু 128 পড়িয়ে फिर से। তার কণ্ঠ ছিল কোকিলের মতো মধুর এবং তিনি 3-4টি বিভিন্ন রাগে শ্রীমদ্ ভাগবতের এক একটি শ্লোক পাঠ করতেন। তাই তার ভাগবত পাঠ ছিল অত্যন্ত শ্রুতি মধুর। देखिए, इससे पता चलता है कि श्लोक उच्चारण ट्यून में कितना इम्पोर्टेंट है, हाँ। और इनको तो एक ही श्लोक 2-3 ट्यून में आता था भागवत का। ये हमारा जो टीचर है भक्ति वैभव का, गौरांग दर्शन प्रभु, वो भी अलग अलग ट्यून में, प्रामाणिक ट्यून है, ऐसे कुछ नहीं अपना अपना मनगढ़ा ट्यून नहीं है, अलग अलग प्रामाणिक ट्यून में भागवत का श्लोक श्रवण करवाते हैं। मैं बहुत प्रयास करता हूँ स्मरण करने का, लेकिन अंतिम समय जब दरकार है वो भूल जाता हूँ। देखिए, हो सके तो बीच बीच में हम लोग दोपहर को अलग अलग ट्यून से करेंगे भागवतम पाठ। दिन पहले सुनना पड़ेगा, अच्छा से याद नहीं रहता है, मेन समय में ही भूल जाता हूँ। यस आगे। তিনি যখন কৃষ্ণের সৌন্দর্য এবং মাধুর্য পড়তেন বা শুনতেন তখন প্রেম বিহ্বল হয়ে আত্মবিস্মৃত হতেন। এইভাবে রঘুনাথ ভট্ট শ্রী গোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। গোবিন্দের চরণারবিন্দ ছিল তার প্রাণধন। গোবিন্দের মানে রাধা গোবিন্দ কি প্রাণধন কে? राधा गोविंदर रूप गोस्वामी तो रूप गोस्वामी प्रभु। रूप गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट का कौन था?
রঘুনাথের প্রাণধন হে কে? রাধারমন। রাধারমন তো গোপাল ভট্টের প্রাণধন। गोपाल भट्ट का है वो तो। হবে বইটা দেখতে হবে, বইটা খুলতে হবে। আচ্ছা বহুত টাইম চলে যাবে, জেনে দিই। এইভাবে রঘুনাথ ভট্ট শ্রী গোবিন্দের চরণ আত্মসমর্পণ করলেন। गोविंदेर चरण नारबिंदो छिलो तार प्राणधन। अभी रघुनाथ के बारे में अगर भजन में लिखा भी है तो प्रश्न उठेगा ना, ये रघुनाथ भट्ट है या रघुनाथ दास गोस्वामी का है ना? हमको तो लग रहा है रघुनाथ तो है, भजन में है ही नहीं प्रभु। रघुनाथ है ही नहीं क्या भजन में? नहीं प्रभु। ओह, निजो शिष्य को ही गोविंदेर, टाइम हो गया कि नहीं? मंदिर कराइला, निज शिष्य कहिर गोविंदेर मंदिर कराइला। बंशी मकर कुंडा कुंडलादि भूषण करी दिला। बंसी मकर कुंडल आदि भूषण करी दिला। ग्राम्य वार्ता ना सुने ना कहे जी भाई, हरि बोल। ग्राम्य वार्ता ना सुने ना कहे जी भाई। कृष्ण कथा पूजा दीते अष्ट प्रहर जाए। कृष्ण कथा पूजा दीते अष्ट प्रहर जाए। वैष्णवेर निंदा कर्म नाही पारे काने। वैष्णवेर निंदा कर्म नाही पाड़े काड़े। अबे कृष्ण भजन करे এই মাত্র জানে। सभी कृष्ण भजन करे मात्र जाने। वंडरफुल वंडरफुल श्लोक्स। देखिए आइडियल भक्तों का जीवन क्या होना चाहिए। रघुनाथ भट्ट তার শিষ্যদের নির্দেশ দিয়ে গোবিন্দজির মন্দির করিয়েছিলেন। হরি बोल। गोविंद जी का मंदिर निर्माण किया এবং তিনি বংশী মকর কুণ্ডল ইত্যাদি গোবিন্দজির বহু অলংকার করিয়ে দিয়েছিলেন। মানে डोनेशन कलेक्शन करके हो सकता है वो बनवाया था उनके लिए। यस राजीव प्रभु। तो वो राधा गोविंद जी का मंदिर रूप गोस्वामी ने नहीं बनवाया था? हाँ वो तो मालूम है, अभी लिखा है इधर रघुनाथ भट्ट में भी ही आल्सो हेल्प्ड मे बी। लेकिन ऐसे भी हो सकता है ये काशी, ये वृंदावन में है ना, वृंदावन चले गए थे ना? वृंदावन में है तो वो वृंदावन में है तो गोविंद जी का मंदिर तो आई डोंट नो। हमको भी तो मालूम है वो अकबर ने कंट्रीब्यूशन किया था सब कुछ, वो लाल पत्थर लाकर गोविंद जी का मंदिर हुआ था। अकबर ने अपना उधर से दिल्ली से देखता था और रेड सैंडस्टोन किसके पास है, अरे ये क्या जल रहा है उधर, ये सब लीला आता है। हाँ फिर जाकर देखा वो तो गोविंद जी का मंदिर है। यस खुशबू माता जी। दिल्ली से वृंदावन तक देख ले रहे थे अकबर। यस यस यस। प्रभु जी ये उन्होंने बंसी कथा मथुरा गोस्वामी है, इन लोग बहुत अच्छा प्रचार किया। ये जितना मुगलों का है, औरंगजेब को छोड़ के बाकी माने बहुत अच्छा प्रचार किया। एंड द मुगल्स few of them were very big donors of Vrindavan temples, big donors, not small donors. And I think if I'm not mistaken मदन मोहन मंदिर का जो रेड सैंडस्टोन है ये शायद अकबर ने भेजा था, if I'm not mistaken। अभी मदन तो मोहन वो तो नौका वाला था ना, कि नौका वो जो डूब गई थी। नहीं वो तो नमक वाला वो तो कपूर है। हाँ वो कपूर नमक का व्यापारी था ना प्रभु वो मदन मोहन मंदिर के। उन्होंने पैसा दिया था मंदिर निर्माण करने के लिए, बट ये जो रेड कलर जो सैंडस्टोन है वो बहुत एक्सक्लूसिव है, उसी से बनाया हुआ है गोविंद जी का मंदिर, मदन मोहन मंदिर। और ये सप्लाई किया था अकबर ने, if I'm not mistaken। हाँ तो गोस्वामी लोग फिर और भी कोई था किसका वो पंचरत्न में एक वैष्णव भी था इनका, वो अकबर का सभा में था ना, पंचरत्न ना क्या नवरत्न तानसेन नहीं, जयदेव गोस्वामी अकबर का नवरत्न। राजा टोडरमल भी था। Yeah. So anyways, so lot of Goswamis and Vaishnavas used to be there। सलाहकार क्या खुशबू माता जी, वो एक पूरा ग्रंथ है, हमको मालूम नहीं आ रहा है। मैंने once we can go through that book, इसमें सब डिटेल में दिया हुआ है,
ये गोस्वामी लोग कैसे प्रचार किया। तानसेन का घटना मैंने सुना था, जैसे अकबर एक बार बोल रहे थे तानसेन को कि तुम इतना अच्छा गाते हो, तुमसे भी कोई अच्छा गाता है क्या? तब उन्होंने बोला था कि है एक जन वृंदावन में, उनके साथ वो उनको गुरु मानते थे तानसेन, कोई हमारे गोस्वामी कोई। तो अकबर बोले कि उनको बुला के लेकर आओ, तो बोले कि वो आएंगे नहीं, आपको जाना पड़ेगा, वो भी फकीर बन के जाना पड़ेगा, राजा बन के जाएंगे तो नहीं होगा। तो फिर अकबर साधारण पोशाक पहन के आते हैं और उनका जब सुनते हैं तो वो तो तानसेन को भी भूल जाते हैं, लेकिन तानसेन को बोलते हैं कि तुम तो कुछ है ही नहीं इनके सामने। अरे कृष्णा, शायद सूरदास होगा क्या? सूरदास, हरिदास मालूम होता है, उनका नाम भी हरिदास। तब तानसेन बोले कि मैं आपके लिए गाता हूँ, वो प्रभु के लिए गाते हैं, तो फर्क है। अरे वाह, अरे कृष्ण, वाह, सो नाइस फर्स्ट टाइम। यस, खुशबू माता जी। प्रभु ये मकराकृति वाले कान के कुंडल क्या होता है? क्रोकोडाइल डिजाइन, ठीक है। मछली ना, मछली मछली के आकार का प्रभु, मछली मछली के आकार का होता है। फिश का डिजाइन, ठीक है। डिजाइन है, ऐसा नहीं कि फिश को मार के कान में पहन लेने का, ठीक है। डिजाइन है ये तो सब चला जाएगा अभी बाजार में, प्रभु भगवान भी पहनते हैं, हम भी पहनेंगे, बहुत स्मेल आएगा फिर। हरे कृष्णा। यस, आगे आगे हुआ क्या? नहीं हुआ, हुआ तो গ্রাম্যবার্তা। ওকে, রঘুনাথ ভট্ট কোন রকম জড়জাগতিক কথাবার্তা শুনতেন না বা জিহ্বায় উচ্চারণ করতেন না। हरे कृष्णा, कब ये हमको मिलेगा। हरे कृष्णा। only talk about Krishna, only hear about Krishna। কৃষ্ণ কথা এবং কৃষ্ণ পূজায় তার অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হতো। বাহ, কৃষ্ণ কথা এবং কৃষ্ণ পূজায় তার অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হতো। সো ওয়ান্ডারফুল। प्रभु यहाँ पे इस लिखा हुआ है, वह कृष्ण की वार्ता करते और अहर्निश कृष्ण की पूजा करते। अहर्निश क्या हो? ওই অষ্টপ্রহর। অহর্নিশ কি লেখা আছে বাংলাতে? কি লেখা আছে? 24 घंटा। अरे टर्म क्या है? टर्म क्या है लिखा हुआ है? बोलिए महामंजरी माता जी। प्रभु यहाँ पे लिखा है केवल कृष्ण की वार्ता करते और अहर्निश कृष्ण की पूजा करते। अहर्निश, ठीक से बोलिए, क्या है पंकज प्रभु वो वर्ड हिंदी में? अहर्निश, दिन रात, मतलब अहर माने दिन, निश माने तो रात, ठीक है। अहर ये हम तो हर समय, अहर्निश मतलब हर समय, डे एंड नाइट। नहीं तो फिर अहर डे हो गया। आई डोंट नो, मे बी। ओके। তিনি কখনো বৈষ্ণবের নিন্দা কানে শুনতেন না অথবা বৈষ্ণবের অন্যায় আচরণের কথা শুনতেন না। তিনি জানতেন যে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করছে। ये उत्तम अधिकार বাক্য। রঘুনাথ ভট্ট কখনো বৈষ্ণবের হানিকার কোনো কার্য করতেন না, অর্থাৎ তিনি কখনো ভগবানের সেবায় অমনোযোগী হতেন না এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব আচরণের বিধি লঙ্ঘন করতেন না। বৈষ্ণব আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে তার শিষ্য এবং অনুগামীদের বৈষ্ণব আচরণের বিধি লঙ্ঘন না করতে देवा। इसलिए हम लोग वैष्णव एटिकेट क्लास भी करा रहे हैं ना, मंडे हर क्लास रीला बिरयानी माता जी कराती है, आप लोग सब अटेंड कीजिएगा। ये क्लास ऑनलाइन भी कर सकते हैं हम लोग। एक्चुअली माता जी जब क्लास कराते हैं ऑफलाइन में, नहीं फिर तो कोई जाएगा नहीं। प्रभु जी ऑनलाइन करवा दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं प्रभु, ऑफलाइन एक इंटरेक्शन चाहिए हम लोग को। Yes. और माता जी वैसे भी ऑनलाइन में कम इंटरेस्टेड है। हाँ, ऑनलाइन तो बहुत कुछ होता है। एक्चुअली भक्त लोग का वो घर में चिपक जाने का अभ्यास हो गया। अभी ऑनलाइन इतना हुआ है ना, अभी सब ऑनलाइन ही प्रेफर करता है। इसलिए তার কর্তব্য তার অনুগামীদের নিষ্ঠা সহকারে সমস্ত বৈষ্ণব বিধির অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করা, যা তাদের অধঃপতন থেকে রক্ষা করে। বৈষ্ণব প্রচারক যদিও কখনো কখনো কারো সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু রঘুনাথ ভট্ট তাহা করতেন না। কোন বৈষ্ণব নিন্দনীয় আচরণ করলেও রঘুনাথ ভট্ট তার সমালোচনা করতেন না। তিনি জানতেন যে সকলেই কৃষ্ণের সেবা করছেন। এটি মহাভাগবতের লক্ষণ। এইদিকে মহাভাগবত का लक्षण उत्तम अधिकारी भक्तेर लक्षण। প্রকৃতপক্ষে যারা মায়ার দাসত্ব করছেন, উত্তম অধিকারীর দৃষ্টিতে তিনিও শ্রীকৃষ্ণের সেবাই করছেন। হরি বল। কেননা মায়া শ্রীকৃষ্ণের দাসী। হরে কৃষ্ণ। মাই গুডনেস, क्या কনসেপ্ট। সুতরাং মায়ার সেবা করা হলে পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা হয়, ठीक है। लेकिन हम लोग सब प्रत्यक्ष भावे करबो।
শ্রীকৃষ্ণের সেবা পরোক্ষ ভাবে না। ঠিক আছে, তাই বলা হয়েছে কেহ মানে কেহ না মানে সব তার দাস, যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ। চৈতন্য চরিতামৃত আদি 6.85। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, হরিয়া সবে বলো হরি হরি। चरितामृतम की जय। प्रभुपाद की जय। भक्त वृंद की जय। प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।